Good morning, everyone. Today we are going to study some properties related to electric potentials, capacitance, and electric field. And this is electric polarization, electric susceptibility, dielectric strength, and their interrelation. So, first we will start with electric polarization and electric susceptibility. For this, let us consider a non dielectric slab placed in an electric field E naught. We are making, this is not the capacitor, this I am making a electric field. I am making an electric field having value E naught. ये कैपेसिटर नहीं है, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. Put a dielectric slab inside this, a non-polar dielectric slab. एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है, नहीं डाइलेक्ट्रिक का टुकड़ा लिया है जो नॉन पोलर है, यहाँ पे रख दिया. This E naught is consistently maintained. This slab is A, B, C, D. We can write simultaneously that consider a non-polar dielectric slab ABCD placed in an electric field E naught suppose all its atoms are uniformly polarized like this. These are atoms, as we have studied in our previous class, that this non-polar dielectric will get polarized in the direction of electric field. These are not only 3 rows, it can be many number of columns and many number of rows, like this. Minus will be attracted towards positive, but it is not detached from the atom, it is just attracted from the attracted towards the positive side of the electric field. Similarly here also, these non-polar dielectric is get polarized and their positive and negative coincidences is broken, and negative is attracted towards the positive plate of the electric field. It is not the capacitor, it is simply the electric field which is applied between the boundaries of this glass slab. Alright, now as E naught is outside, applied outside, consider this displacement between positive and negative, very small displacement between positive and negative, which is generated due to outer electric field. It is represented as x. It is the separation between negative and positive in individual atoms. x डिस्टेंस है, ये माइनस और प्लस जो इंडिविजुअल है इनके बीच की दूरियों में. ठीक है, सो वी कैन राइट if x is the displacement between the centers of the positive and negative charges in the atom. Alright, then dipole moment, just because this is equal and opposite positive and negative charge, here it is equal and opposite positive negative charge separated by x, positive negative charge separated by x, so all are these are separated by x and they have positive and negative charge equally. So dipole moment of
each atom, each individual atom can be written as small p, and it is equals to, if I say this has charge q and charge minus q, charge q, charge minus q, so it is q multiplied by x. if you remember the charge multiplied by the distance, आपको याद होगा q इंटू 2a, तो यहाँ पे 2a का काम x कर रहा है. Now here one important thing we can infer that if capital N is the number of atoms per unit volume, very important, it is not the total, it is per unit volume number, per unit volume, then dipole moment per unit volume, dipole moment per unit volume क्या होगा, it is equals to the dipole moment of 1 multiplied by this n, कितने number of atoms हैं, so it is equals to n multiplied by this एक का dipole moment qx. ठीक है, so this n qx, it is also called, और इसको और क्या कह सकते हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी नाम दे दिया इसको, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी. इट इज इक्वल्स टू, इफ आई से इट इज कैपिटल P, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसी क्वांटिटी को नाम दिया है टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी. इट इज इक्वल्स टू कैपिटल P, इट इज इक्वल्स टू n qx. Okay, so this is dipole moment density. Now next स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, इसको इक्वेशन आप 1 लिख लीजिए. Now this dipole moment density is also called, this dipole or the total dipole moment density is called electric polarization. Electric polarization, our first quantity or first property. Electric polarization, very important line. It measures the extent of polarization, कि कितना पोलराइज हुआ है ये ग्लास स्लैब, ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बताएगा. इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, अब अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट भी होगी, तो एसआई यूनिट ऑफ P is what you can see from here, it is qx, coulomb multiplied by meter and multiplied by, it is n, charge per unit volume. All right, so it is coulomb meter multiplied by, sorry, it is number of atoms per unit volume, not charge, so it is 1 by volume, so we can write it as coulomb meter, it is qx multiplied by per meter cube, which is total number of molecules per unit volume, so we can write it as coulomb per meter square. It can also be represented, it can also be represented by सिग्मा आई. और क्यों ऐसा होता है इसको हम अभी आगे देखेंगे, सिग्मा आई क्या चीज़ है. अभी के लिए अब आप इसको सिग्मा आई को सिग्मा इंड्यूस्ड समझिएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड. अब देखिए यहाँ पे अभी सिग्मा आई को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
देखिए ये जो ग्लास स्लैब का पोलराइजेशन हुआ है, इसमें निगेटिव वाले इधर गए हैं, पॉजिटिव इधर आए हैं। चूँकि ये मिलियंस ऑफ एटम्स इसके अंदर हैं, तो अगर हम इस स्लैब के इतने टुकड़े को, लास्ट वाली एक निगेटिव रो को छोड़ दिया, इधर से लास्ट वाली पॉजिटिव रो को छोड़ दिया और केवल बीच वाले को सबको कंसीडर किया, तो हम ये पाते हैं कि अंदर जितने भी पॉजिटिव हैं ऑलमोस्ट सभी निगेटिव को कैंसिल आउट कर देंगे चार्ज को। यानी ओवरऑल अंदर ये जो रेड वाली मैंने बाउंड्री बनाई, इसके बाहर क्या है, सबसे बाहर वाली निगेटिव लाइन जो कि सरफेस पे आई है, किसके कारण आई है, ये जो पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ है, पॉजिटिव वाली ये वाली लाइन। लेकिन अंदर के सभी, ये जो मैंने अलग से एक हिस्सा बनाया कि बाउंड्री के ठीक अंदर, ये सभी क्या है, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेते हैं। चार्ज तो न्यूट्रल है लेकिन इस बाउंड्री के अंदर। लेकिन बाहर हम क्या पाते हैं, यहाँ एक लाइन बन गई निगेटिव की और यहाँ एक लाइन बन गई पॉजिटिव की, बाकी सब ने कैंसिल आउट कर दिए। यानी एक बाउंड्री पे यहाँ है निगेटिव, यहाँ है बाउंड्री पे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हों और निगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हों तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे भी इनसाइड एक पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी मेंटेन हो जाता है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर वाला ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ईपी क्या है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर वाली बाउंड्री पे एक्यूमुलेटेड निगेटिव और पॉजिटिव के कारण जनरेट हुआ। और यही निगेटिव वाले कितने हैं, ये चार्ज एक्चुअली में इंडक्शन के कारण आए हुए हैं। जितने निगेटिव यहाँ इधर बाउंड्री पे होंगे उतने ही पॉजिटिव यहाँ इधर बाउंड्री पे होंगे। तो इन्हीं ये जो सरफेस पे निगेटिव चार्ज आए, इनकी क्वांटिटी पर यूनिट एरिया ही हमारी क्या कहलाती है, ये जो लास्ट में मैंने सिग्मा आई बताया। इट इज़ द इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ दिस स्लैब। यानी जो निगेटिव चार्ज जो बाद में बाएं तरफ बचे रह गए और दाएं तरफ बचे रह गए, बीच वाले तो सभी न्यूट्रलाइज हो गए हैं, एक तरह से न्यूट्रल माना जा सकता है उनको। लेकिन बाउंड्री पे जो एक्यूमुलेट हुए हैं दैट इज सिग्मा आई, द चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसको, इनको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। इसको कुछ क्वांटिटी लिख भी लेते हैं। The charges inside the glass, the slab or the dielectric slab will be neutralized as shown in red boundary, but charge remains at the surfaces. Which surface? AD and BC. AD and BC remains unneutralized. All right, unneutralized. So these charges are called induced charges or polarization charges.
right? It is very important. Now you see that electric field E naught is working outside and EP is working inside. Both have different direction. So the resultant electric field will be somewhere the difference of these two quantities. Alright, so we can write like effective electric field in polarized dielectric कितना होगा इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, विल बी इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी. ठीक है, ई नॉट माइनस ई पी होगा. और जो किसके बराबर होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं. 1 तो हमने पीछे लिया. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ई. इट इज एक्चुअली, और यू कैन remove this vector sign also, just because they are opposite. We are considering only the magnitude. E is called reduced value of the electric field. Alright, now this EP is how much? EP इज इक्वल्स टू वो जो अंदर इंड्यूस चार्जेस के कारण जनरेट हुआ है. चूंकि वो इंड्यूस चार्जेस के कारण जनरेट हुआ है, तो आपको पता है कि शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट जो पैरेलल शीट दो होती हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, जो मीडियम है. और चूंकि वहाँ मीडियम एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है, इसलिए एप्सिलॉन यूज़ हो रहा है. तो सिग्मा आई बाई ई हो जाएगी EP की वैल्यू, और सिग्मा आई बाई ई. और सिग्मा आई क्या है? ये जो इंड्यूस चार्जेस, मैंने आपको सबसे पहले सिग्मा आई के बारे में ही बताया था. ठीक है, तो सिग्मा आई असल में जो क्वांटिटी थी, वो असल में इंड्यूस्ड चार्जेस पर यूनिट एरिया. इसका एरिया अगर मैंने कैपिटल ए लिया हुआ है, इंड्यूस्ड चार्जेस मैंने मान लिया, इंड्यूस्ड चार्जेस हैं क्यू आई. तो सिग्मा आई क्या किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा आई बराबर हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल्स टू क्यू आई अपॉन एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी को यूज़ करेंगे. सिग्मा आई कैन बी रिटन एज क्यू आई बाई ए एंड इट इज़ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन. सो इट इज़ इक्वेशन 3. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा आई. मैंने आपको बताया था जब हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ रहे थे, तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू कैपिटल पी. सो since sigma is equals to capital P, so we can write EP is equals to P by A also. Sorry, P by epsilon. Sigma I epsilon. P by epsilon also. It is equation 4. तो EP is equals to P by epsilon also, जो हमने सबसे पहले देखा था कि सिग्मा I ही हमारा P था, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हो गई. अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे. फ़िलहाल यहाँ से हम एक और क्वांटिटी निकाल लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम हियर. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, here the ratio of external electric field means E naught to the reduced value of electric field E
इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट बाई ई, यानी जो बाहर वाला था और जो रिड्यूस होने के बाद अंदर वाली क्वांटिटी है उसको ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको थोड़ा सा अलजेब्रा अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे, वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो मैंने आपसे कहा था। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, देखिए यहाँ पे हमको ये पता चलता है, जो रिसर्चर्स के थ्रू यहाँ पता चला, जो जितना भी यहाँ पे जब स्लैब को रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया गया, तो पाया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P था ये प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। कि मतलब कोई जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो कितना पोलराइज होगा, इस पे डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होता है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। मतलब आपको तो पता है कि रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं तो अंदर एक इंडक्शन होता है जिसके कारण अंदर एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और ये दोनों का डिफरेंस ही ई होता है। अब कितना रिड्यूस हो रहा है इस पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना पोलराइज होगा। ठीक है, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू E, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है तो यहाँ पे मिलता है एक एक्सप्रेशन एप्सिलॉन काई, यहाँ पे एक नया वर्ड है, और E, P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन काई E। ठीक है, तो अब ये काई क्या चीज़ है? काई जो है CHI, ठीक है, काई ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको कहते हैं। और यहाँ एप्सिलॉन का रोल इतना है कि काई को हमें बनाना था डायमेंशनलेस। जब रिसर्चर्स इसको ये काम कर रहे थे तो काई को डायमेंशनलेस बनाने के लिए उन्हें एप्सिलॉन मल्टीप्लाई किया था, जिससे कि काई एक नंबर केवल ये बताए कि वो कितना ससेप्टेबल है कोई मटेरियल। ठीक है, तो और इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि चूँकि देखिए जब बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और अंदर कोई भी पोलराइजेशन इस तरह का ना हो, यानी कोई ई ना जनरेट हो, यानी पी ना जनरेट हो, तो उसके लिए क्या होता है, वैक्यूम होना चाहिए अंदर, यानी दो जो फील्ड के बीच में वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, तब वहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। तो P इक्वल्स टू 0 के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ काई 0 होना चाहिए। तो काई इक्वल्स टू 0 वैक्यूम के लिए होता है। ठीक है, यहाँ एक ऐसे डिफाइंड है कि जो इलेक्ट्रिक जो पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू E द रिड्यूस्ड वैल्यू, एंड दिस P प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन काई E, जहाँ एप्सिलॉन उस मटेरियल मीडियम का डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो काई है ये वैक्यूम के लिए तो 0 होता है, जैसे जैसे और मटेरियल चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी चेंज होती जाती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिलेशन पूछा जाता है अक्सर, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक susceptibility and dielectric constant। जितनी भी अभी हमने पीछे रिलेशन लिखी है या डिराइव करी है, कुछ एक्सप्रेशंस हम डिराइव करते हैं, कुछ डिराइव नहीं कर सकते हैं इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। जैसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है उसके बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम उन रिलेशंस को लिख लेते हैं जो हमने देखा था। सबसे पहले तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड फील्ड कितना था, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस ई पी। ठीक है,
जहाँ पे EP जो था वो आपको याद दिला दूँ, वो था सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन, जो कि था P बाई एप्सिलॉन के बराबर। पहला चीज़ तो ये था, यहाँ रख देते हैं E0 माइनस P बाई एप्सिलॉन। अब ये P आपको मैं याद दिला दूँ, सबसे पहले क्या था यहाँ पे एप्सिलॉन अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट, कहाँ गया अल्फ़ा, कहाँ से, P एप्सिलॉन काई E, ठीक, एप्सिलॉन काई E, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई P की, इसको रख लेते हैं E0 माइनस एप्सिलॉन काई E बाई एप्सिलॉन। सो इट इज़ E0 माइनस काई E, एप्सिलॉन कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ये किसके बराबर है, E के बराबर है, ठीक है। एक काम अब इससे कर सकते हैं कि E से सब में डिवाइड कर दें, E बाई E, E0 बाई E माइनस काई E बाई E। तो यहाँ से हमें मिलता है 1 इज इक्वल्स टू E0 बाई E माइनस काई। अब देखिए E0 बाई E मैंने बताया था कि यहाँ से डिफाइंड होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E0 बाई E। तो इट के, और देखिए ये यही नहीं, ये आप कहीं से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीछे डेरिवेशन से खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू K माइनस काई, सो K इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन जो आता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर today's lecture. Thank you.